topic, and my topic is emotional well-being and mental health. Mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, feel, and act. It also helps determine how we handle stress, relate to others, and make choices. Mental health is important at every stage of life, from childhood and adolescence through adulthood. We usually think about our feelings and emotions like tensions, happiness, and grief, such as depressions and bipolar disorder. We know that our life is totally full ups and downs. Every day we face new challenges in our life. The problem we face in our life, like people they may they make fun with us. It also they criticize with us that how we look, how we talk, how we walk, even how to behave. Even sometimes we have to face, we have to cope up with unexpected situations that we never think about that, like facing any abusive relationship, loss of friends and loved ones, even fear of academic failure. As we grew up, our good mental health, as we grew up and mature, our good mental health enable us to face these kinds of problems very easily, and we can live with a happy life. But on the other hand, if we have poor mental health, then this is the biggest cause of youth today. We can face a lot of difficulties regarding this. So, in that situation, we have to take help of our family members, our friends, or colleagues, so that we can come out with that type of stresses or problems and live a happy, a better life. The biggest organization according to WHO, World Health Organization, said about that mental health is a state of well-being in which every individual realizes his or her potential. They can cope with the normal stresses of life. Even we can work with fruitfully and productivity. It also able to make contribution to his or her community. Means मानसिक स्वास्थ्य वह है जिसमें मनुष्य अपनी क्षमताओं को पहचान सके, जिसमें वो जिंदगी में आने वाले तमाम तनावों को खुद से वो दूर कर सके और अपने कामों को पूरी उत्पादकता के साथ फलदायी रूप से काम कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण, वो जिस समुदाय में रह रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है, उसमें अपना एक बेहतर योगदान दे सके। Experience problems and difficult times, it can affect our mental and emotional
past upsetting experiences, relationships, school or college, big changes, or finding out who you are. This can make us feel stressed and worry about things. It can affect how we sleep, impact on our mood, and make us unhappy or anxious. It may make us feel more angry than usual, or want to hide away. Mental health and emotional well-being circles around the way we act, think, and feel. Acting aggressively and lashing out, feeling withdrawn and distant, or stuck and unable to do anything. Think. Thoughts like doubt, suspicion, or thinking you are no good. Feeling low in mood, flat, angry, agitated, anxious, or fed up. Who can help us when we feel this way? Your local child and adolescent mental health service, which is also called CAMS. We are a team of health professionals, doctors, psychologists, nurses, social workers, and psychotherapists, who are trained to help children and adolescents who are struggling with how they act, think, and feel. We work with you and people around you to think about how to help so that you can be offered the right support. We will see you either at our offices or outside in the community, such as school, home, or wherever else you may feel comfortable. We will follow your lead, and you won't have to talk about things unless you want to. We will keep your information confidential unless we have to share it to keep you safe. Your local CAMS team can help you with your mental health and emotional well-being. Next slide is risk factors of mental health condition. ऐसे कौन-कौन से factors हैं जो mental health को प्रभावित करते हैं? There are 3 types of factors responsible for this: biological factors, psychological factors, and environmental factors. In biological factors, 3 things are included like genetics, defect of brain or injury, and parental damage. अगर हम genetics की बात करें तो mental health condition may be transferred through genes from one generation to the next generation. कभी-कभी क्या होता है कि पेरेंट्स में जो ट्रेट्स होते हैं वही ट्रेट्स, जैसे पेरेंट्स अगर गुस्सैले स्वभाव का है या फिर मदर उसमें काइंड हार्टेड है, तो दोनों में से कोई एक गुण वो उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है जीन्स के थ्रू. समटाइम ब्रेन डिफेक्ट्स, कभी-कभी ब्रेन में कोई डिफेक्ट्स हो जाए या फिर इंजरी हो जाता है तो उसका भी मेंटली प्रभाव पड़ता है. या फिर हम बात करें पैरेंटल डैमेज की. अर्ली स्टेज ऑफ फॉइटल डेवलपमेंट, जब फॉइटस का डेवलपमेंट होता है माँ की मदर के वॉम में तो उस वक्त अगर माँ को कोई इंजरी पहुँचती है तो ऐसा नहीं है कि वो फॉइटस जो है वो जो बेबी है वो उसे वो नुकसान नहीं पहुँचेगा, उसे भी वो नुकसान पहुँच सकता है और वो उसका भी मेंटली वो भी डिसऑर्डर हो सकता है. देयर इज अ मूवी, आई थिंक यू माइट हैव वॉच्ड दैट मूवी, कोई मिल गया. In that movie, it was shown that in that movie, Rekha was played the role of actress and Preeti Zinta also, and Hrithik Roshan was played the role of actor. In that movie, it was shown that how she met up with an accident, and when after her delivery, her child got mentally disordered, and when he was born, but her body is only developing, but that time his mind didn't develop it. His mind is just like a baby. उसका सिर्फ शरीर ही बढ़ा लेकिन उसका माइंड जो है वो उतना ही का उतना ही रह गया. वो बड़ा तो हो गया लेकिन उसका माइंड जो है वो बिल्कुल बच्चे के जैसा रह गया. This is the example of parental damage. Next factor is psychological factors. Loss of parents और caregiver. Parents बच्चे सबसे ज़्यादा अपने अटैचमेंट उनके माँ बाप से होता है. अगर वो अगर गुजर जाए या फिर वो हमसे दूर चले जाते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट माइंड पर पड़ता है. नेग्लेक्ट बाय पेरेंट, अगर माँ बाप के 2 बच्चे हैं, अगर 2 या 3 जिसमें बेटे और बेटी हैं, अगर वो बेटे को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और बेटी को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं,
उसे बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छे प्लेइंग दे रहे हैं, उन्हें टाइम दे रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बेटे को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो वैसी स्थिति में वो जो बेटी है उसके दिमाग में भी ये चीज़ धीरे धीरे बैठते चला जाएगा कि नहीं, पेरेंट्स जो है वो हमें प्यार नहीं करते, वो हमसे इग्नोर कर रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है, दैट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। The next one is traumatic events experienced in childhood may include abuse in any form. कुछ ऐसी घटना जो बचपन में घटी हो लेकिन वो चीज़ें माइंड से नहीं निकल पाई, वो जब वो इंसान बड़ा तो हो गया लेकिन वो चीज़ें उसके माइंड में वैसे ही कि वैसे ही सेट है, वो ठीक नहीं हो पाई जो बचपन में उसके साथ गुजरी, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं माइंड पर एक असर डालता है। The next one is social factors or environmental factors. Loss of loved one. Loved one means anyone can be. Maybe your mother, maybe your father, maybe your siblings, means anyone. वो जब हमसे दूर जाते हैं तो उसका भी एक सदमा होता है, एक ऐसा सदमा लग जाता है कि वो डायरेक्टली माइंड पर ही इफेक्ट होता है। सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे को माँ फादर दोनों का ही प्यार चाहिए होता है, तो वैसे स्थिति में अगर वो उनका सेपरेशन होता है तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कोई होता है तो वो बच्चा होता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप से अटैचमेंट होता है और वो सोचता है कि माँ भी मेरे साथ रहे और फादर भी रहे, दोनों ही का प्यार मुझे मिले, दोनों ही मेरे साथ रहे। तो सबसे ज़्यादा उनका रिश्ता तो माँ बाप का टूटता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें तकलीफ बच्चे को होती है और कहीं ना कहीं मेंटली डिसऑर्डर होता है इस चीज़ से। शिफ्ट ऑफ रेसिडेंस, हम जिस वतन में रहते हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। जैसे अगर हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं तो हिंदुस्तान से हमें बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा लगाव है, यहाँ तक कि अगर कोई अदर कंट्री के लोग हमारे मुल्क के बारे में कोई कुछ कह भी देते हैं तो हम उनसे आगे करना शुरू कर देते हैं कि नहीं तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे मुल्क के बारे में ऐसा कहने की। मीन्स हमें वो जगह हमें बहुत ज़्यादा प्यारी है, हम उसे इमोशनली और मेंटली दोनों तरह से उससे पूरी तरह से अटैच हैं, लेकिन अचानक से अगर वो जगह हमें छोड़नी पड़े और कहीं और जाकर रहना पड़े तो वैसी स्थिति में हमारा माइंड जो है वो दूसरी जगह को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और वो इंसान क्या होता है कभी कभी वो माइंड पर भी वो असर पड़ जाता है। Next slide is symptoms. How will we recognize that the person facing mental problem? So there is some symptoms we can easily find out that yeah he or she is facing that type of problem. Number first is eating or sleeping too much or too little. या तो एक नॉर्मल इंसान वो एक नॉर्मल क्वांटिटी में खाना खाएगा, लेकिन अगर इस तरह के अगर ये है बहुत ज़्यादा खाएगा या फिर बहुत ही कम खाएगा या फिर वो बहुत ज़्यादा सोएगा या फिर बहुत ही कम सोएगा, क्योंकि हम लोग जनरली 6 to 8 आवर्स ही अपनी नींद को पूरा करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सोते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सो रहे हैं इट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिससे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, या फिर अगर नींद उड़ जाए, रात में भी जाग रहे हैं दिन में भी जाग रहे हैं, इट मीन्स कोई ना कोई उसमें भी प्रॉब्लम है। दोनों ही स्थिति में ऐसा हो सकता है। हैविंग लो और नो एनर्जी, इट इज नो एनर्जी, बिल्कुल फील कर रहा है कि एनर्जी है ही नहीं है, ही इज अनेबल टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क, कोई काम करने की उसकी क्षमता होगी नहीं, क्योंकि उस वीकनेस को फील कर रहा है, नो उसके पास लग रहा है कि कोई एनर्जी है ही नहीं है, वो वैसी स्थिति में कुछ नहीं कर पाता है। Smoking, drinking or using drugs more than usual, इंसान सोचता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने आप को स्मोकिंग करना शुरू कर देता है, ड्रिंकिंग या फिर कोई ड्रग्स है तो वो एक डोज होता है कोई भी ड्रग्स लेने का, और वो अगर ज़्यादा ले रहा है अपने इससे तो उसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान है, जिससे वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहा है या स्मोकिंग कर रहा है या फिर ड्रिंकिंग कर रहा है। Yelling or fighting, we see that
those who are well educated, they are well behaved or they are well disciplined. लेकिन जो वो अब एक जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं या फिर जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो हमेशा वेल बिहेव्ड और वेल डिसिप्लिन में ही बात करेंगे। लेकिन जो इस तरह की चीज़ों से गुजर रहे हैं तो वो छोटी छोटी बात को पर वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देते हैं, बात का इशू बना देते हैं। तो वो समझ में आ जाता है कि नहीं, ये बंदे के अंदर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। थिंकिंग ऑफ हार्मिंग योरसेल्फ और अदर्स ऑल्सो, अपने आप को किसी न किसी तरह से वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ दूसरे को भी परेशान करेगा, दूसरे को भी वो नुकसान पहुंचाएगा और खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा। ऐसी स्थिति में ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्टम्स हैं जिसके जरिए हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वो मेंटली से कोई प्रॉब्लम है या मेंटली वो डिसऑर्डर है। Having persistent thought and memories you can't get off your head. कभी कभी कुछ चीज़ें मेमोरीज में जाके फिट हो जाती है, सेट हो जाती है, कुछ यादें पीछा नहीं छोड़ती हैं और वो हमें इस तरह से जकड़ लेती है कि हम उसे चाह कर उससे बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं बट निकल नहीं पाते हैं। तो और जिससे वो पर्सन जो बिहेव करेगा वो डिफरेंटली, उसका बिहेवियर ही हमें समझा देगा कि हाँ ये ज़रूर इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी याद है या फिर ऐसी घटना है जो उसके साथ घटी है जिससे की वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। Mental health in schools, families and community as holistic approach. स्कूल में, फैमिली में और कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ का कौन कैसा रोल प्ले करता है, बच्चे की लाइफ में वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं। We will say the first is role of family. We know that family is the first socialization thing what the child is exposed to. कहते हैं कि फैमिली है जहाँ बच्चे का पहला सोशलाइजेशन होता है, क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने घर में सबसे पहले अपने माँ बाप को देखता है, अपने सिबलिंग्स को देखता है और वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, वो जिस तरह का लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिस तरह की एक्टिविटी करते हैं, वो सारी चीज़ों को बच्चा इमिटेट करता है, वो सारी चीज़ों को बच्चा सीखता है। उनके अटैचमेंट, उनके इमोशंस, उनका पर्सनैलिटी ट्रेट्स, बिहेवियर, सारी चीज़ों को वो इमिटेट करते रहता है और सारी चीज़ करके वो सीख लेता है, वही चीज़ों को वो अप्लाई करता है। The next one is role of school. अब बच्चा इस घर के बाद वो अब स्कूल जाता है और यहाँ फिर से उसका रीसोशलाइजेशन होता है। यहाँ जब वो जाता है तो स्कूल में उसकी तरह के डिफरेंट ऑफ स्टूडेंट जो अलग कम्युनिटी से, अलग कास्ट से, अलग ट्रेड से वो स्कूल में आते हैं और उनके साथ उनका इंट्रैक्शन होता है, वहाँ स्कूल में उसे एक डिफरेंट माहौल मिलता है। स्कूल्स में टीचर्स होते हैं, स्टाफ्स होते हैं जो उसे बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो अपने टैलेंट को पहचान सके, उसे मोटिवेट करते हैं, उसे इनकरेज करते हैं, उसे आगे बढ़ने में उसकी मदद करते हैं कि कैसे अगर वो जहाँ पर डिमोटिवेट होता है उसे वो चीज़ दिखाया जाता है कि नहीं ये चीज़ तुम कर सकते, यू कैन डू, you have talent, you have the ability that you can do your work very easily। तो वहाँ पर टीचर्स उसको मोटिवेट करते हैं कदम कदम पर और वही बच्चा आगे चलकर बहुत आगे चला जाता है। कहने का मतलब घर के बाद अगर दूसरा सोशलाइजेशन होता है तो स्कूल में होता है। अगर हम घर में देखें तो घर में जहाँ पर बच्चा घर में रहता है तो वो जहाँ पर नमस्ते करता है, लेकिन जब वो स्कूल आता है स्कूल में वो उसके बिहेवियर में चेंजिंग, अब वहाँ पर वो नमस्ते की जगह वो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस ही यूज्ड इन हिज लाइफ वो यूज करना शुरू कर देता है कि वहाँ पर उसके बिहेवियर में चेंजिंग शुरू हो गया। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ एंड स्कूल ही हमारा एक लघु समाज है जहाँ बच्चे का पूरी तरह से डेवलपमेंट होता है और इस घर के बाद, स्कूल के बाद
कम्युनिटी जहाँ पर वो रहता है। उस कम्युनिटी में उसके नेबर्स होते हैं, उसके पीयर ग्रुप्स हो सकते हैं, उसके साथ वो खेलता है, कूदता है, टाइम स्पेंड करता है, अपनी बहुत सारी चीज़ों को शेयर करता है, जिससे बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कमिटमेंट होता है, लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वो स्कूल और फैमिली के अगर देखा जाए बात, तो वो अपने जो पीयर्स ग्रुप होते हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट करता है और उनके साथ वो शेयर करना पसंद करता है। तो ये तीनों ही बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के इसमें एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। Video. After watching this video, you will be crystal clear after watching this video. I am showing it. माँ को देखो, वो हर हाल में गाना गाती है। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। अंतरा, तुमने 2 अलग-अलग तरह के रिबन बांध रखे हैं। हाँ माँ, मुझे दोनों रंग पसंद है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ पहना है। ठीक है, जैसे भी तुम खुश रहो। चलो अपना लंच बॉक्स लो। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। शायद मैं इनके ग्रुप में रहने के लायक नहीं हूँ। सबके पास सुंदर सुंदर टिफिन है और सब साथ में खाना खाते हैं। कोई भी अपना खाना मेरे साथ नहीं बांटता। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हेलो अंतरा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? क्या तुम ठीक हो बेटा? मैंने देखा कि तुम कुछ परेशान हो। सब ठीक तो है? मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। जब भी मैं इन सबको एक दूसरे के साथ बात करते, खेलते और गाना गाते सुनती हूँ, मुझे लगता है मैं उनके ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे अपनी टिफिन भी नहीं बांटता। मैं हमेशा अकेले खाती हूँ। अंतरा, मुझे गर्व है कि तुमने अपनी मनोभावों को व्यक्त किया। तुम्हारी माँ ने पौष्टिक खाना दिया है, जो कि इस सुंदर टिफिन बॉक्स से कहीं बेहतर है। मैं समझ सकती हूँ कि कई बार ये तुम्हारे लिए काफी कठिन होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी परिस्थितियों में भी सकारात्मक तरीके से कार्य करने की क्षमता है। तुम अकेले नहीं हो। तुम अपने चुने तरीकों से ऐसे मनोभावों से निपट सकती हो। मेरी माँ कहती है कि जब भी कभी मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाऊँ तो इस गाने को गाऊं और इससे मुझे सुकून मिलता है। ओह, इसलिए तुम कोने में बैठकर ये धुन गुनगुना रही थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। हमारा विद्यालय एक अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ आए और कक्षा के लिए कुछ पंक्तियां गाएं। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा प्रयास बच्चों। और कोई? अंतरा, क्या तुम कक्षा को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहोगी? जरा उसके बालों को तो देखो। वो तो अलग अलग रंगों के रिबन बांधे हुए हैं। कितनी बेवकूफ है। मैम कितनी अच्छी है और मेरी मदद करती है। माँ ने मुझे प्रेरणा दी, जिसके कारण आज मैं अच्छा गा सकती हूँ। मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकती हूँ। मैं तो उड़ जाऊं आसमां के पार। अंतरा ने अपनी
चुनौतीपूर्ण मनोभावों को नियंत्रित किया। जैसे वो अपनी कक्षा के सम्मुख खड़ी हुई थी, उसी ऊर्जा के साथ फिर से वो अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। वाह, इस लड़की की कितनी बेहतरीन आवाज है। मुझे बहुत पसंद आया इसका गाना। ये हमारी बेटी है। अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है अंतरा को। मनोभावों को समझना और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। हमारी देखने, सुनने, छूने और सोचने की क्षमताओं की ही तरह महसूस करने की क्षमता भी आत्म जागरूकता के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। मनोभावों को व्यक्त करने की क्षमता किशोरावस्था में बहुत मायने रखती है। जिस उम्र में किशोर भावनात्मक दबाव का सामना करते हैं, हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आपको अपनी भावनाएं दूसरों से साझा करनी चाहिए। आपके भीतर प्रेम और सहयोग की भावना है और आपका मानसिक स्वास्थ्य व भावनात्मक भलाई बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट वन इज गुड मेंटल हेल्थ एंड बेनिफिट्स। अगर मानसिक स्वास्थ्य हमारा ये रहेगा तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। Zest for living, the ability to enjoy life, to laugh and have fun, a sense of well-being and contentment, the ability to take for oneself or others, self-confidence and good self-esteem, the sense of well-roundedness with attention to mind, body, spirit, creativity, intellectual development, health, etc. A sense of balance in one's life between solitude and sociability, work and play, sleep and wakefulness, rest and exercise, etc. Flexibility, the ability to change, grow and experiences a range of feelings as life's circumstances change. Self-realization, participating in life to the fullest extent possible through meaningful activities and positive relationships. Resilience, being able to deal with life's stresses and bounce back from adversity. It is said that a healthy body leads to a healthy mind. एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और हमें हर काम में मन लगेगा। कोई भी काम अगर हम करेंगे तो वो हमारा मुकम्मल होगा और सक्सेसफुली होगा। जब हम खुद हेल्दी रहेंगे, जब हम खुद रहेंगे तभी हम दूसरे की भी केयर कर सकते हैं। जब तक हम खुद अपनी केयर नहीं करेंगे तो दूसरे की क्या कर सकते हैं। एक इंसान जब खुद से प्यार करता है तभी वो दूसरे से भी कर सकता है। जब खुद से ही नहीं करेगा तो फिर वो दूसरे से कैसे कर सकता है। अगर हम हेल्दी हैं तो हम नई नई चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। हमारी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो सकती है, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप होगी, पूरी तरह से डेवलपमेंट होगा। अगर लाइफ में कोई स्ट्रेसेस है, किसी चीज़ से हम कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो उससे हम आराम से निकल सकते हैं। ज़िंदगी को एक चुनौती की तरह जी सकते हैं। अगर हमारा पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम है तो हम दोनों को पर्सनली अलग रखकर प्रोफेशनली अलग रखकर उसे डील कर सकते हैं। किसी दूसरे के पास नहीं जाना पड़ेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। हम खुद से वो चीज़ को करने की एबिलिटी रख सकते हैं, खुद से वो चीज़ हैंडल कर सकते हैं। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। कोई भी अगर हम काम करेंगे तो वो पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, हमारे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, गुड सेल्फ एस्टीम के साथ कर सकते हैं। हमारे अंदर कोई भी पार्शलिटी नहीं, कोई भी भाव नहीं कि हम ये काम हमसे नहीं हो सकता है। जो भी अगर हम अगर जिस काम में हम अपना हाथ डाल दें वो काम को मुकम्मल आराम से कर सकते हैं अगर हम मेंटली सही है। तो कुछ चीज़ें अपनी रूटीन को फॉलो करना पड़ता है, अपने हेल्थ रूटीन को, कैसे सोना, कैसे खाना, कैसे पीना, एवरीथिंग। When we mentally healthy, we enjoy our life and environment and the people in it. We can be creative,
learn, try new things and take risks, we are better able to cope with the difficult times in our personal and professional lives. चाहे जिंदगी में जितनी भी रिस्क हो, हम उस चीज़ को आराम से हैंडल कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी होगी, अगर हमारे अंदर वो चीज़ होगा, हम उस चीज़ को हर इसमें कर सकते हैं। The next slide is negative effects on human life. ऐसे कौन कौन से नेगेटिविटी है, नेगेटिव इफेक्ट्स जो ह्यूमन लाइफ से पड़ते हैं। तो द फर्स्ट वन इज टेक थिंग्स सीरियसली। बहुत से लोग कुछ चीज़ों को बहुत सीरियस लेते हैं, छोटी सी बात है बट उसको माइंड से ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। ओवर थिंकिंग, और अगर वो चीज़ है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कि उनका इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि वो जो फैसला अगर उनको कुछ लेना होता है तो वो फैसला भी उनका कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि वो उनकी सोच उनके कहीं ना कहीं उनके फैसले पर हावी हो जाता है और वो फैसला वो लेने के लिए नहीं, अब हम अगर कोई फैसला लेंगे तो शायद वो हमसे गलत हो जाएगा, इसलिए वो दूसरे से हेल्प लेते हैं डिसीजन मेकिंग के टाइम। बट इट शुड नॉट बी, बिकॉज इट इज़ योर लाइफ, सो इट इज़ योर राइट ऑल्सो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है तो आपको खुद ही कोई फैसला ज़िंदगी का लेना चाहिए, ना कि ये। तो अगर निगेटिविटी आ जाती है तो इंसान डिसीजन मेकिंग में भी वीक हो जाता है। लो इम्यूनिटी लेवल, उसकी इम्यूनिटी अगर वो खाएगा पिएगा नहीं सही से, उसकी ईटिंग हैबिट्स अगर सही नहीं है तो उसमें क्या होगा, इम्यूनिटी पावर उसका डिक्रीज करने लगता है, जो क्षमता है उसकी वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। एंगर एंड रैश बिहेवियर, उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन स्वभाव में आ जाता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है। लेस सोशलिज्म एंड कनेक्टिविटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सोशली वो डिसकनेक्टेड हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे। हम लोग क्या एक सामाजिक जानवर है या सोशल एनिमल है, चाहे वो डायरेक्टली रूप से या फिर इनडायरेक्टली रूप से, हम कहीं ना कहीं समाज पर ही निर्भर करते हैं। हम बिना समाज के नहीं रह सकते हैं। अगर कोई ऐसा रहता है तो फिर वो इंसान, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। कोई परमात्मा हो सकता है या फिर आई डोंट नो, बट वो हो सकता है, क्योंकि वो फिर इंसान नहीं है। हम लोग जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो टोटली सोशल पर ही डिपेंड करते हैं, सोशली हैं। और हम ये देखते हैं कि पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे से मिलते थे, जुलते थे, उनसे अपनी बातें शेयर करते थे। एक दूसरे से अगर कोई इनसे नहीं मिल रहा है तो वो उनके घर जाकर उनका ख्याल पूछते थे, उनका पूछते थे कि कैसे हैं, नहीं है, उनके ख्याल पूछते थे। बट आज के ज़माने में लोग सोशली डिसकनेक्टेड हो गए हैं, बस वो घर में ही रहते हैं और फिर इंट्रोवर्ट हो गए हैं, बस अपने आप में ही अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं मालूम, बस लगता है कि घर है, मोबाइल है, दैट इज इनफ, बस वो अपने घर में ही रहते हैं। सोशली वो है ही नहीं है, खुद में ही इंट्रोवर्ट, जो अपनी धुन में खुद रहता है, समाज से उसको कोई मतलब नहीं कि समाज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसे कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से नेगेटिविटी आ जाती है, लोग डिसकनेक्टेड हो जाते हैं सोशली। लैक ऑफ पल्स, सैडनेस एंड नेगेटिव थॉट्स, मीन्स नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर आना शुरू हो जाती है, सैडनेस आ जाता है। जब भी वो कुछ करेंगे तो हो सकता है गलत हो हमसे, उनके अंदर नेगेटिविटी वाली थॉट्स आ जाती है। इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स, अब खाने में भी वो इरेगुलरिटी आ जाती है, वो खाना कभी एक टाइम खाए और फिर एक टाइम नहीं खाए, दूसरे टाइम छोड़ दिए, फिर खा लिए। इट मीन्स वो खा तो रहे हैं लेकिन सिर्फ कहते हैं कि वो पेट भरने के लिए खा रहे हैं, ये नहीं कि हाँ वो खाना जो है वो कहीं ना कहीं उनको एनर्जी देता है, वो एनर्जी के लिए नहीं, हेल्दी होने के लिए नहीं खा रहे, बल्कि पेट भरने के लिए खा रहे हैं कि बस खा ले रहे हैं, वो हमसे हमारा पेट भर जाएगा। बट इट शुड नॉट बी, क्योंकि खाना जो होता है एक प्रॉपर डाइट होना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डिमिनिश इंटरेस्ट इन नियरली ऑल एक्टिविटीज, उनकी इंटरेस्ट जो है वो दिलचस्पी जो होती है, जो रुचि होती है वो
किसी न किसी अलग अलग एक्टिविटीज़ में जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं करते हैं, उनकी घटती चली जाती है कि नहीं ये काम हमसे नहीं होगा, हम इसके लिए बने ही नहीं हैं, अगर हम करें तो वो हमसे कुछ गलत हो जाए, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ उनका इंटरेस्ट जो है किसी भी काम करने का, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे वो खाना बनाने का हो, चाहे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है डेली लाइफ में, तो वो धीरे धीरे उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो खत्म होती चली जाती है, वो नहीं कर पाते हैं। लोनलीनेस, अब इतनी सारी नेगेटिविटी अगर थॉट्स में आ जाएगा, उनकी वर्क में आ जाएगा, तो इंसान जाहिर सी बात है वो अपने आप को बिल्कुल अकेला फील करेगा, लगेगा कि कोई है ही नहीं, हम बिल्कुल अकेले हैं, मेरा तो कोई है ही नहीं है, ऐसे ही जी रहे हैं, जिंदगी बेमतलब सी है, इसकी कोई मायने नहीं है, इस तरह की नेगेटिविटी आ जाती है। और एट लास्ट विशिंग ऑफ सुसाइड, और लगता है कि बस अब मर जाए और दुनिया से मुक्ति मिल जाए, इस तरह के ख्यालात मन में आते चले जाते हैं, सुसाइड ये सब के, क्योंकि जब इतनी नेगेटिविटी भर जाएगी तो वो इंसान फिर जीना पसंद करेगा ही नहीं, उसे लगेगा कि मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद ही शांति मिलेगी, क्योंकि दुनिया में कुछ नहीं है, बस सिर्फ दर्द है, ये है, बस यही सब है। और अगर देखा जाए रेशियो के हिसाब से तो रोड एक्सीडेंट के बाद अगर जो सबसे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है वो सुसाइड का ही है हमारी सोसाइटी में। लोग कुछ चीज़ें के बाद उनके माइंड में वो चला जाता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो गए, और फिर लास्ट में अगर उनकी कोई वेल विशर मिल गए, जैसे अगर वो अपने पेरेंट्स से या फिर अपने जो कलीग्स हैं या अपने फ्रेंड्स से, उनसे अगर वो शेयर करते हैं तो वो उन्हें गाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। लेकिन जिसे ऐसा कोई मिला ही नहीं मिले तो वो क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को क्या करते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। और ऐसा नहीं कि सुसाइड जो है वो सिर्फ इलिटरेट लोग ही करते हैं। सुसाइड केस में हम देखते हैं कि एक्टर है, एक्ट्रेस है, जो वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, उसके बावजूद भी वो इस तरह का कदम उठा लेते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, मरने वाले की तादाद में ज़्यादातर जो है वो यूथ ही है। ओल्ड एज के लोग बहुत, आई थिंक मैंने तो नहीं सुना ना देखा है कि वो ओल्ड एज लोग सुसाइड कर लेते हैं, बट हाँ ये जो चीज़ें हैं वो जो यूथ है, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो उन्हें स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं है, वो सोचते हैं ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज़ मिल जाए हमें आसानी से, बस यही लाइफ होनी चाहिए। जो आज वो ज़िंदगी से चैलेंज की तरह वो ज़िंदगी जीते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी अप्स एंड डाउन्स होती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हमें उस चीज़ से कैसे निकलना है, हमें उस चीज़ से कैसे डील करना है, ये हम आज की पीढ़ी नहीं जानते हैं। तो सुसाइड का सबसे बड़ा रीज़न यही है। Negative words that are totally connected with our emotional health issues. You can see in the slide like shame, stress, drugs, exhausted, depression, trauma. These all are the negative words, and this can affect our emotion, directly affect our emotional health. So you can see the slides. आउट ऑफ कंट्रोल, नेगेटिव बड़ी इमेज, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड्स नहीं है, सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं जो हमारे इमोशंस को कहीं ना कहीं हार्म करते हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्यूशन ऑफ मेंटल इलनेस। अब इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा कि मेंटल हेल्थ है क्या, उसके फैक्टर्स क्या थे, उसके सिम्टम्स क्या थे, उसका बेनिफिट्स क्या होता है, अगर हम मेंटली पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है तो उसका बेनिफिट्स क्या होता है, नेगेटिविटी कौन सी है जो इंसान सोच लेता है। अब एट लास्ट जो है वो आपका सॉल्यूशन है कि हम अगर इस चीज़ में तो किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को। अगर बाय द वे ज़िंदगी में कोई ऐसा, मतलब अल्लाह ना करे, बट अगर हो ऐसा तो किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर दूसरे की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर कोई इस तरह की चीज़ों से गुजर रहा है तो वो किसी प्रोफेशनल जो काउंसलर होते हैं उनके पास जाना चाहिए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पास आइडियाज़ होते हैं उस चीज़ से बाहर निकलने का, कैसे आप अपने फियर पर काबू पा सकते हैं, कैसे अपनी
जो कि एंजाइटीज़ है उस चीज़ से कैसे हम फेस कर सकते हैं। तो वो काउंसलर जो होते हैं साइकियाट्रिस्ट टाइप के, वो आपको पूरी तरह से उस चीज़ से बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं। द नेक्स्ट वन इज सोशलाइज। लोगों से मिलते रहना चाहिए, क्योंकि एज आई टोल्ड अर्लियर दैट ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, सो वी हैव टू इंटरेक्ट विद द पीपल, फैमिली, फ्रेंड्स, उनसे मिलते रहना चाहिए, उनसे ये करना चाहिए। हम पूरी तरह से सोशलाइज होना चाहिए, खुद से इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए बल्कि एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली, और हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा माइंड भी स्वस्थ रहेगा और हम किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जब हमारा बॉडी ही फिट नहीं रहेगा तो फिर हम किसी भी काम को कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देन गेट इनफ रेस्ट। अगर मशीन ही है, अगर उसे हम कंटिन्यू उससे वर्क करते हैं तो वो मशीन भी थक जाती है। दैट वी आर ह्यूमन बीइंग, सो वी शुड आल्सो नीड टू टेक सम रेस्ट। हमें भी कुछ अगर काम करने के बाद अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो थोड़ी सा टाइम मिलना चाहिए जिसमें हम रेस्ट कर सकें। तो मशीन भी एक वक्त के बाद चलते चलते वो भी गर्म हो जाता है। तो वी आर ह्यूमन बीइंग आल्सो, सो वी शुड आल्सो नीड टू टेक सम रेस्ट। ईट हेल्दी डाइट। खाना जो है वो स्वस्थ खाना चाहिए, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाना चाहिए। अपने डाइट में बैलेंस डाइट को इंक्लूड करना चाहिए। सभी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, चाहे प्रोटीन हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए ताकि हमारा बॉडी फिट रह सके और हम अपने हर चीज़ों को बेहतर ढंग से कर पाएँ। अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स। स्मोकिंग को, अल्कोहल को, ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्मल इंसान अगर थोड़ा सा सर में दर्द है, अगर एक टाइम टैबलेट ले लेते हैं तो लगता है कि हम बीमार से हो गए हैं, ऐसा लगता है ड्रग लेने से। लेकिन सो इस चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, ध्यान करना चाहिए थोड़े से, मतलब 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। वो उससे क्या होता है, हमारा माइंड पूरी तरह से पीस, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, शांति मिलती, सुकून मिलता है। तो हमें ये भी करना चाहिए। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमें खुद अपना ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, कैसे हम अपनी जॉब को कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। सेल्फ केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम खुद अपनी केयर नहीं करेंगे तो फिर हमारी केयर भी कोई नहीं कर पाएगा। तो प्रैक्टिस सेल्फ केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एट लास्ट, बिल्ड सपोर्ट नेटवर्क। हमें फैमिली हो गई, फ्रेंड्स और वर्क कलीग्स, एंड ऑलवेज मेक अप आवर सपोर्ट नेटवर्क। हमारी फैमिली होती है, जब भी कोई परेशानी होती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम अपने दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, और वो हमारे एक सपोर्ट पिलर बनके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं कि हमें नहीं, ये चीज़ तुम जो कर रही हो ये गलत है, ये सही, ये इस तरह से करो, ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। अगर आप परेशानी में हैं तो वो आपको सही राह भी दिखाते हैं, आपकी मदद भी करते हैं। तो हमें अपना सपोर्ट नेटवर्क को बिल्ड अप करना चाहिए। उस चीज़ में हमारे कलीग्स भी आ जाते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स के पास अगर थर्ड नंबर